He said, it is for you to decide where you are. And if I have to bring back those thoughts of Swami Vivekananda on the capacity of you, I have to only give out these lines for you, कि तू हार है, तू जीत है. तू हार है, तू जीत है, तू ख्वाब है, तू हकीकत है. तू हार है, तू जीत है, तू ख्वाब है, तू हकीकत है. तय तू कर ले, तेरी क्या फितरत है, हारना तुझे है या जीत से मोहब्बत है. It's for you to decide where you stand, where you want to take yourself. The second thing that he talked about is the power of the mind. Is the power of the, जानते हम कि what you conceive you can achieve. Have you heard that? Have you heard that earlier? 5 of you? Yes. You have heard that earlier, that the power of the mind is such that if you conceive, even before you see it, if you believe, if you conceive, you can achieve it, you can see it happen. Many of you must have read Rhonda Byrne, The Secret. Yes? Yes or no? Yes. Now we acclaim her as one of the biggest living authors from Australia. Why? Because she said the same thing, that if you can conceive, you can achieve. If you can visualize, it is achieved. That's the secret, she says. And what she is saying was said ages ago by our own very saint. That all that is here in you, you can decide. He used the words, your mind is the infinite library of the universe. What a beautiful phrase. And mind you, let me tell you this, I spoke about those 5,000 pages and 9 volumes. You must read some of those pages to know the literary strength of this Swamiji. He was not a Swami with these robes. You see भगवा कपड़ा पहन लिया तो बोलते नहीं स्वामी होंगे कोई. अरे उनकी भाषा पढ़ो, भाषा की सुंदरता देखो, बहक जाओगे, nothing less. You will be floored by the language that he uses. He says, it is the infinite library of the universe. Entire knowledge that this world has produced has come from somebody's mind. Do you agree with that? It's a fact. We don't realize it. We don't realize it. आप कहोगे कि ये बातें जो कह रहे हो आपकी, ओहो, you are the greatest, you are the creator of your destiny, you are the person who can do everything, you are God, you are the greatest temple, the power of the mind is immense. ये सब सुनी पुरानी बातें हैं. आपने नया क्या बोला? ऐसा ख्याल आपके दिमाग से होकर गुजरेगा. This thought will journey through your mind that what is new? Yes, this has been said earlier. We have heard it so many times. But let me remind you, brothers and sisters, I will repeat. Let me remind you that it is not that I have come to tell you something new. I have not come here to inform you. I have come here to remind you of what he said. I have come here to remind you. And what you have to learn from here, nobody is going to teach you. You have to take back your learnings. So you have to decide what you take back. कहा जाता है कि एक दादाजी नित्य सुबह गीता पाठ करते थे. Are you all with me? Let me hear that again and again. Yeah. So एक दादाजी गीता पाठ करते थे और गीता पाठ करते हुए सुबह नहा के तैयार होके स्वच्छ कपड़े पहनकर स्वच्छ जगह पर बैठकर गीता पाठ करना शुरू करते थे. दादाजी का जो पोता था वो रोज अपने दादाजी को नित्य देखता था कि सुबह उठे हैं, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर गीता पाठ कर रहे हैं. और आप जानते हैं कि पोते को पिता से प्रेम न हो पर दादाजी से प्रेम जरूर होता है. दिस इज अ फैक्ट. आई एम अ नाना इन माई ओन राइट. आई वुड नो दैट. आई एम अ नाना ऑफ 2. सो दादाजी को देखकर उस पोते के मन में इच्छा जागी कि मैं भी जो दादाजी करते हैं वो मैं भी करूं. तो दादाजी ने कहा कि दादाजी आप क्या करते हो? तो बोले गीता पाठ करते हो. तो बोले मुझे भी करना है, आप जैसे ही बनना है, आप जैसे ही करना है. तो बोले बेटा इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. तो बोले उठ जाएंगे. तो दादाजी ने कहा इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, बेटे ने तो कभी किया नहीं पर पोता कम से कम अपने कदमों में चल रहा है. बच्चा उठा, दूसरे दिन स्वच्छ हुआ, तैयार हुआ, स्वच्छ कपड़े पहन लिए, परिधान स्वच्छ कपड़े पहनकर आया, पास में बैठा, गीता पाठ करना शुरू किया. 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते और 5वें दिन पोते ने दादाजी को कहा दादाजी मैं परेशान हो गया. बोले 5 दिन से वही गीता पाठ कर रहे हैं, वही कृष्ण है, वही अर्जुन है, भाषा भी इतनी क्लिष्ट है, समझ में नहीं आती और नया तो कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा, नया कुछ पढ़ने को मिल ही नहीं रहा, तो मुझे कुछ आनंद नहीं आ रहा है. अब दादाजी ने ये बात सुनी, दादाजी भी हैरत में रह गए. पर दादाजी थे, उन्होंने बच्चे को उस वक्त जवाब नहीं दिया. उत्तर में बच्चे को कहा बेटा वो कोयले की टोकरी देखते हो? तो बेटे ने कहा हाँ देखता हूँ. तो बोले एक काम करो,
वो कोयला गिरा दो और इसमें पानी भर के ले आओ, बाहर जाओ और इसमें पानी भर के ले आओ। अब पोते ने जब सुना तब बोले दादाजी को क्या हो गया, टोकरी में कभी पानी रहेगा, पर लाने बोल रहे हैं तो आज्ञाकारी पोते के जैसे वो टोकरी लेकर बाहर गया। बाहर जाकर पानी भरने का प्रयत्न किया और टोकरी वापस अंदर लेकर आया। पानी था? पानी था नहीं। दादाजी के पास आकर खड़ा हुआ, कहने लगा पानी नहीं है। दादाजी ने कहा मैंने तुम्हें कहा था पानी भर के ले आओ। बोले बिल्कुल। तो बोले भर के ले आओ, तुमने प्रयत्न बराबर नहीं किया। बच्चा फिर से गया, फिर से भरने की कोशिश की, फिर से अंदर आया, पानी नहीं। दादाजी ने कहा बेटा शायद तुम ऐसे कर रहे हो, तुम पूरा पानी भरते नहीं हो इसमें, और पूरा भरते नहीं, अगर गिर भी जाए तो थोड़ा गिरेगा, बाकी तो आ ही जाएगा, तुम पूरा भर के ले आओ। बच्चा फिर गया, पूरा भरने की कोशिश की, लेकर आया, पर पानी नहीं था। बोलो, बोलने में कुछ नहीं लगता, वचनों में दरिद्रता मत रखो। ओके, वापस आ गया। वापस आते ही जब दादाजी ने कहा कि क्या बात है, तुम पानी भर के ले आओ, तुमने पूरा भरा होगा पर तुम टहलते हुए आए होंगे, टहलने के बजाय सीधे यहां आ जाओ। बेचारा बच्चा फिर गया, फिर पानी भरने का प्रयत्न किया, पूरी टोकरी भरने का प्रयत्न करके अंदर लौटा इन फुल स्पीड। दादाजी के सामने आया, टोकरी में पानी नहीं था। दादाजी बोले आपने पहली बार जब कहा था मुझे कि इसमें पानी भर ले आओ, तब भी मुझे पता था कि इसमें पानी रहने वाला नहीं है, फिर भी आपकी बात टाल ली रही, उसके लिए मैंने प्रयत्न किए। आपने बोले वो आदेश मैंने पाले और भरने की कोशिश की। मुझे मालूम था पानी नहीं रहेगा और इसमें पानी रहा नहीं, अब क्या किया जाए। तो दादाजी ने जवाब दिया और वो जवाब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दादाजी ने कहा मैंने कब कहा इसमें पानी रहने वाला है? तो बोले तुम टोकरी देखते हो? तो बोले हाँ देखता हूं। बोले पहले कैसी थी? तो बोले पहली तो काली कलूटी कोयले की भरी हुई थी तो काली थी। बोले अब कैसी दिखती है? तो बोले अब तो साफ स्वच्छ दिखती है। तो दादाजी ने वही कहा, तुमने गीता पाठ की बात की थी, गीता पढ़ने से, वही का वही गीता पढ़ने से नया अंदर कुछ नहीं जाएगा, पर अंदर जमा हुआ काला बाहर निकल जाएगा। तो जब ये बातें दोहरा रहा हूं मैं कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर इन योर हैंड्स लाइज योर फ्यूचर, I think I am repeating what he said, but it needs repetition like we need the repetition of Gita each day at home. He said the power of the mind, you cannot imagine what it can do, what it cannot do. If you are wanting yourself to be weak, you will be weak. If you feel you are strong, you will be strong. So it's your decision. If you decide to win, you will win. If you decide that you are going to lose, you will lose. It's all there with you. That is the power of the mind. आप आंखें बंद कर लोगे और कहोगे कि अंधेरा है, तो दोष किसका है? अंधेरे का या आपके आंखों पर पर्दा लगाने का? आंखों पर पर्दा लगाने का अपना दोष है। सो देयर यू आर, ही सेड, यू लुक एट योर माइंड एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी. Focus on the power of the mind, and then the mind will take you to places like the sun every day rising, enlightens every corner, nook and corner of this globe. Are you with me? Are you with me? Yes. Then Swamiji said what my predecessor said, take one idea. There must be writings which talk about this. Take one idea, make it your life. Take one idea, make it your life. Have you set your goals? If I were to ask you this question, what do you see yourself 5 years from now? And I've asked this question often, कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? मैं सीए हो जाऊंगा, मैं ये वो करूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. I said, no, these are very petty answers. Where do you see yourself 5 years from now? And I'm asking you this question again in the context of this talk today, that have you ever sat and thought, what is your ultimate goal in life? Some soul searching, go back home, find out for yourself, what is it that you want in life? CA karna hai, that's not the ultimate goal. That is one step. Maybe that's the means to your goal, but that is not the goal. So do some soul searching, find out what is that goal, find that goal. You'll have to spend umpteen hours to understand what your goal is in life. And then, if you have ascertained that, then make it your life. Let your blood, your muscles, your nerves breathe that dream, that goal, that idea. Very simple solution. You had just about a month ago, you had 31st December, and each year we sit down and do our New Year resolves. Did you do that?
यस, ऑल ऑफ अस डू दैट। वैशाली में बैठ के करेंगे, रूपाली में बैठ के करेंगे, या जहां भी बैठते होंगे वहां बैठकर वहीं के टिश्यू पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखेंगे और घर जाएंगे, शायद वो वहीं का वेटर उठा के अपना आपका लिखा हुआ चिट्ठा डस्टबिन में डालेगा। How many of you really seriously apply your mind to that New Year resolution? That one small thought that you think for your year 2013. How many of us? Many of us say, अभी मुझे वजन कम करना है। Very, very standard, I would want to be fit. कल से exercise, कल से gym शुरू करना है। Is that one of the thoughts that crosses your mind every 31st December? Yes. And do you lose it by 7th of January? Almost. By this date, तो it's already gone, forgotten. नहीं कन्वेंशन था, 2 दिन बहुत काम था, बहुत गड़बड़ थी, छोड़ दिया है पीछे। They say that अगर गोल को ही बना लो और उसको अगर make it your life की बात करते हैं तो क्या करना चाहिए? What do you need to do? Because ultimately knowing what Swamiji said is not enough. How you would implement is equally important. What would you do? Write down that goal, paste it on the mirror, put it in your purse, put it in your front pocket, put it in your bathroom wall, put it on your ceiling, tell it to your enemy, write it on his forehead. नहीं, important है, because आप अगर लिखते हो, assuming for a moment that आप लिखते हो कि मुझे 10 किलो वजन घटाना है, और वो आप आपके दुश्मन के माथे पे लिखवा के आते हो, वो दुश्मन क्या करेगा? फरवरी में बोलेगा 10 किलो कम करने वाला था ना, बोलेगा या नहीं बोलेगा? जून में पूछेगा कितना हो गया, तो वो आग लगाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है आग लगाना, बिकॉज आग लगाई हो वो चीज तेज जाती है। एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट, कौन सी फास्ट जाती है? वाई? क्योंकि पीछे आग लगाई है। Unfortunately, for knowing the power of dreams, you have to be told. महात्मा गांधी ने फ्रीडम की बात की, मदर टेरेसा ने चिल्ड्रन के उत्थान की बात की, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग ने कहा। अरे जमाने पहले कहा था, तुमको ड्रीम्स का पावर बताने के लिए उनको याद दिलाना पड़ता है? Why? Can we not know the power of dreams? Can we not realize it on a day-on-day basis? Yes. The problem with us is that we cannot even think of a big idea. And I am asking you this question when I am telling you to go back home and write your dream, write your one idea. I am asking you, I am giving you a suggestion. Write of a dream, write of an idea with the knowledge that this will never fail. Assuming I was to tell you कि मांग लो जो मांगना है, हो जाएगा तुम्हारा. What would you do? Would you write the best or the bestest? Bestest or not? Yes. Why? Because you are sure you are not going to fail. So what is the problem? The problem is हम डरते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, उसके लिए ड्रीम छोटा कर देते हैं. शायद हमारे पूर्वजों ने कहा कि जितनी लंबी चादर उतने पैर पसार, कहकर हमको कॉम्प्लेसेंट बना दिया. And Swami Vivekananda said that is not done, not complacency. पांव लंबे कर दो और चादर उतनी बनाने की कोशिश करो कि पांव वहां तक चले जाए, चादर वहां तक चले जाए. That is what Swami Vivekananda talked of. That you have to decide. It is not only the size of your dream, it is the depth of your dream. How well you are connected to that dream. Are you emotionally connected? हमारे प्रॉब्लम ऐसे है कि हम ड्रीम्स कर लेते हैं, आइडियाज बना लेते हैं, रेजोल्यूशंस बना लेते हैं, बट वी आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड. नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? अरे वेयर यू आर. इफ दैट इज द वे यू आर अटैच्ड टू योर ड्रीम, टू योर इमोशनली कनेक्टेड टू योर आइडिया, you will never ever achieve it. Take it from me. But जिस दिन ठान लो कि यस, उसके लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि live that dream, make it a part of your life. Your entire body should vibrate with that dream, and then see it happen. It will be achieved, it will be realized. That is the way to success. That's what Swami Vivekananda said. Are you all with me? Are you all with me? I need a louder one. Yes. और उस ड्रीम को अगर हकीकत में बदलना है तो मैं आपके लिए 4 पंक्तियां, फास्ट फूड का ज़माना है, 4 पंक्तियों में दे दिया तो काम हो जाता है. तो 4 पंक्तियां आपके लिए दे दूं कि हर सपने को अपने सांसों में रख, हर सपने को अपनी सांसों में रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में रख, हर सपने को अपनी सांसों में रख,
हर मंजिल को अपनी बाहों में रख, हर जीत अपनी राहों में होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रख. When you do that and come back to me, I would see you as that successful person that you dreamed of today, that you thought of today. And then Swamiji also said an important thing, and mind you, this is important. Most of the times when we make our resolutions, when we make our ideas, we wonder कि ये ridicule होगा, इसको लोग क्या बोलेंगे, तमाशा निकालेंगे, तमाशा करेंगे, यार क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. मुझे तो BMW 5 सीरीज लेकर एम्बी वैली में विला होना चाहिए और मेरी एक पर्सनल यॉट होनी चाहिए. ऐसे किसी को आपने आपके ड्रीम लिस्ट में बात कर ली तो कैसा लगेगा आपको? आप बोलने की हिम्मत भी नहीं करोगे क्योंकि बोले पागल में निकालेगा. Is that true or not? Is that true or not? I came from a small town place, but I decided that yes, we will carve out our place in this fraternity, and so I did. I'm happy about it, and I would want that each one of you is also happy about what you thought you should be. Are you with me? Now when you do that, you will be worried, log kya kahenge. Be different, doesn't matter. Swamiji said, be different, stand out. Doesn't matter what the world says. Doesn't matter. Because in a game, and you see cricket or you see hockey or you see football, who makes the noise? Audience, not the player. Player to apna laga hua rehta hai kaam par. So you be the player, not the audience. That's the message for you from Swamiji. Be the player. Stand out, be different. It was beautifully said that they laugh at me because I am different. They laugh at me because I am different. I laugh at them because they are all the same. Doesn't matter. सब एक जैसे, मैं अलग हूं. Stand out, be different, be brave, be bold. That's what Swamiji said, and I thought I must pass on that message for you. Then that brings me to the next proposition, and that is about the positive attitude. रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया, आप स्वामी जी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो बोले, there is nothing negative about him. Everything is positive. Rabindranath Tagore, a man, a literary genius, a Nobel laureate, makes this observation about Swami Vivekananda. Everything is positive about him. My question to you is, how positive are you each moment? You are here sitting in the convention hall on a Saturday afternoon and your boss calls up. You see, मोबाइल पे दिखता भी है किसका फोन आ रहा है और बॉस का तो नाम लिखा हुआ रहता है सामने. How do you feel? Tell me honestly. Do you react? Is it a proactive response to that call? Or you say, Saturday को भी बॉस छोड़ता नहीं अपने को. Isn't that the response? Yes, रात को 1 बजे फोन आ जाए किसी का, how do you pick up the line? साइलेंट कर देते हैं, बंद कर देते हैं. बट कौन उठाएगा? और उठाएगा तो 2 गालियां पहले देंगे, फिर बाद में की बात करेंगे. दैट इज द पॉजिटिविटी दैट वी कैरी. आई मस्ट टेल यू अ स्टोरी. शिवाजी नगर एसटी स्टैंड पे आप गए हैं? यस. नहीं गए होंगे तो जाना, स्वारगेट पे या शिवाजी नगर के एसटी स्टैंड पे, और आज जाकर देखना जो नहीं गए हैं. और अगर आप वहां गए और आप ऑब्जर्वेंट इंडिविजुअल हो तो आपने देखा होगा कई पैजामा नेहरू शर्ट परिधान किए हुए गांव के आने वाले लोग जब बीड़ी पीते तब आपने बीड़ी पीते हुए उनको देखा है? देखा है? नहीं देखा है? देखा होगा. तो बीड़ी का जुड़ा वो बंदा निकालता है. अभी आपको मैं ले जाता हूं स्वारगेट एसटी स्टैंड पर. वो बंदा बीड़ी का जुड़ा जेब से निकालता है, बीड़ी के जुड़े को ऐसे देखता है, इस तरह टैप करता है. देखा है टैप करते हुए? ऐसे टैप करता है, कवर निकालता है, फिर उन बीड़ियों का निरीक्षण करता है और उसमें से एक बीड़ी निकालता है, लबों पे लगाता है और बाकी जेब में डालता है और वो स्मोक करता है. ठीक उसी तरह दूसरी बार जब लेना होता है फिर से निकालता है, फिर ऐसे करता है, फिर एक देखता है, निकालता है. मैं ये सोचता था कि ये इंसान जब बीड़ी का जुड़ा निकालता है और इस तरह ऑब्जर्व करता है तब वो क्या सोचता है? व्हाट डज ही थिंक? कैन यू इमेजिन? आई ट्राई टू थिंक फॉर माई सेल्फ कि वो क्या सोचता होगा. और मैंने अपने निजी अनुभव से माना कि वो सोचता होगा 2 किस्म के, और ये सोचकर मैंने 2 किस्म में बंटवारा किया ये बीड़ी पीने वालों को. 2 किस्म के बीड़ी पीने वाले लोग होते हैं. एक जो बीड़ी का जुड़ा निकालते हैं और देखते हैं, जिनकी विचारधारा एक है, और दूसरे की दूसरी. पहले की विचारधारा कि इसमें की सबसे बीड़ी बुरी पहले पी लूं, फिर अच्छी वाली बाद में पीऊंगा. और दूसरा किस्म का बीड़ी पीने वाला निकालता है बीड़ी का जुड़ा और कहता है कि सबसे बढ़िया बीड़ी जो है वो पी लूं, फिर बाद में पीऊंगा. दोनों में फर्क क्या है?
ये बीड़ी पीने वाला 10 में की सबसे बेकार, 9 में से सबसे बेकार, 5 में से सबसे बेकार, 4 में से सबसे बेकार, और सबसे बेकार एक ही रही है वो भी। और ये क्या करता है? सबसे बढ़िया 10वीं, सबसे बढ़िया 9वीं, सबसे बढ़िया तीसरी, सबसे बढ़िया दूसरी, सबसे बढ़िया पहली। आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? बीड़ी पीने की जरूरत नहीं है। आप किस कैटेगरी में, आपका रवैया, आपकी सोच कैसी है वो मैं जानना चाहता हूं। कैसे आप सोचते हैं? डू यू थिंक लाइक दिस बीड़ी वाला एंड ड्रिंक और स्मोक रादर 9-10 बुरी बीड़ी, या ये जो हर चीज, हर बीड़ी को पॉजिटिवली देखता है और बढ़िया बीड़ी पिए जाता है? जिंदगी को कैसे जीना है ये आपने तय करना है, बढ़िया अच्छी तरह से या बुरी तरह से, हर बीड़ी को बुरा देखते हुए। दैट यू हैव टू डिसाइड, एंड फॉर दैट दोस 4 लाइन्स फॉर यू कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से क्या फायदा, रुख बदलो किनारे मिल जाएंगे। मेरे पास 10 मिनट और है। पवार साहब तो ऑलरेडी चले गए हैं, मुंदड़ा जी बैठे हैं, इनको जाने नहीं देना आप। आर वी टुगेदर? आर वी टुगेदर? फैंटास्टिक। मार्क इंग्लिश, इस इंसान का नाम सुना होगा आपने, मार्क इंग्लिश। मार्क इंग्लिश इज अ डबल एम्प्यूटी, दोनों पांव नहीं है। 52 साल, 25 साल की उम्र में दोनों पांव खो बैठे फ्रॉस्ट बाइट से। माउंटेनियरिंग का शौक था, 15 दिन बर्फ में सड़ गए, दोनों पांव खत्म हो गए, फिर भी 52वें साल में भी माउंट एवरेस्ट करके आए। और माउंट एवरेस्ट करके आए तब उनसे पूछा गया कि डबल एम्प्यूटी, पांव नहीं है और आप माउंट एवरेस्ट करने की चेष्टा करते और माउंट एवरेस्ट जाकर आ गए। बोले क्या बात है? तो बोले डबल एम्प्यूटी होना किसने कहा नुकसान है? मेरे 2 पांव नहीं है तो क्या हुआ? 2 पांव नहीं है इसका मतलब शरीर का उतना हिस्सा कम है जिस पर फ्रॉस्ट बाइट हो ही नहीं सकता। बाकी लोगों को फ्रॉस्ट बाइट पांव में भी हो सकता है, मुझे फ्रॉस्ट बाइट पांव में तो नहीं होता, सो आई एम बेटर ऑफ। दैट इज द एटीट्यूड दैट मार्क इंग्लिश कैरीड विद हिम। दैट इज द एटीट्यूड, दैट इज द एटीट्यूड you would need to carry out your goals to realization. That is the attitude you would need to see that your dreams are achieved, you are successful in whatever dreams you think of. Edmund Hillary, have you known Sir Edmund Hillary? Yes or no?